today the topic is this keyword. So when you are using this keyword, suppose when we define class demo, okay, class define करिबा class demo, एठी हमें define करिबा constructor जोटा कि काली हमें पढ़ितले constructor हमें यूज करथिले. It is used for initializing the member variable टाको initialization करिया पई हमें constructor यूज करथिले. तो ये member variable ले गोटे अछि int a आ एठी हमर गोटे parameter variable अछि एठी भी हमें डिफाइन करिबा int a member variable int a parameter variable भी रहइबा हमर int a रहइबो. एठी जतला हमें initialization करिबा a is equals to a रहइबो. मैं तो लिखुचे a is equals to a तो ए जगह रे कोन हुए ने कंपाइलर ता हमर कंफ्यूज हो जाए जे को वेरिएबल ता होची मेंबर वेरिएबल और को वेरिएबल ता होची पैरामीटर वेरिएबल. तो जत्ते बेले हमर मेंबर वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल नेम ता सेम थिबो से समय रे हमें जते लिखुचे a is equals to a तो कंपाइलर कंफ्यूजन हे जिवो. कंफ्यूज हे कि से कोन करिवो हमें जते इंटीजर वैल्यू स्टोर कोचे से जगह रे से 0 रखिवो. जदि हमें स्ट्रिंग पैरामीटर नोचे ताले से सेटे देखेबो नल देखेबो. जते बेले हमरा मेंबर वेरिएबल एंड पैरामीटर वेरिएबल नेम दीटा का सेम थिबो. तो ए जो एम्बिग्युइटी बा जो डुप्लीकेसी ए जोटा रहउची ए डुप्लीकेसी टा को हटेया पई हमें यूज करिवा एठी दिस कीवर्ड यूज करिवा. this dot a is equals to a जेतला हमें लिखोचे this dot a is equals to a. okay, so this refers to parameter variable. Just a minute. This link पठे. So this refers to member variable. ये जो member variable को reference आपने this keyword use करिएगा. तो ये कितने बड़े यूज करिबा ने तबे हमर पैरामीटर वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल नेम टा सेम थिबो तो से समय हमें दिस कीवर्ड टा के यूज करियो. अच्छा हमारा एक एग्जांपल देखिबा कोन रहउची. एटा देखिबा ओरा प्रोग्राम अछि. रेडी प्रोग्राम टा अछि देखिबा. Also, what master गाड़ी के तो पर नहीं है जे जीवे के नहीं
এটা দেখো প্রোগ্রামটা ওটা হলো স্টুডেন্ট 11 int id then string name student 11 int id string name এটি পাস করা হলো ওকে তারপর দেখো এটি স্টুডেন্ট 11 int id then string name ओके तो हमें दीटा पास कर ले गोटा होची int id string name string 11 int id string name okay now check that here I create a object of class so first of all I'm creating a object of class s1 new student 11 okay so when I create a object of class so at that timing your constructor is called this one is called so when you are creating a object of class constructor is called because the class name and constructor name is same here I define int id and string name int id and string name and member variable name is id and name so here you can see that the member variable name is id and name and parameter variable name is id and name so both are having same name and if I define id is equals to id name is equals to name so after creating a object student 11 s1 equals to new student 11 111 current so when you pass the 111 it is initialized in the id when you pass current this storing the name okay so id is equals to id so this id is this one this name is this one now this id is this one this name is this one so that is for our understanding but compiler doesn't know which one is a parameter variable and which one is a member variable so when you call the function so by this s1 object when you call the function okay so when you call the function s1.display so it is showing you the default value of integer is 0 and default value of string is null okay so I run this program and see the output then I make a changes over here now let's see here java c file name dot java then java student 11 now see that for integer value it is showing you 0 default value of integer is 0 and default value of string is null now I do rectification here now for identifying the member variable I write here this dot id equals to id this dot name is equals to name now check what is the output so after writing this keyword then it is identified okay so now I create a object of class मोटे class ର object बनली student 11 s1 equals to new student 11 तो ये जो 111 current 111 ଆଉ जो current ଟା ଏଠି store ହେଲା
पैरामीटर वेरिएबल आने की मेंबर वेरिएबल स्टोर कले तापर मु जेता डिस्प्ले कली s1 डॉट डिस्प्ले ले फंक्शन टा डिस्प्ले फंक्शन टा कॉल हला जे कि मते आईडी शो कला तो नेम शो कला आउ थरे जेता ऑब्जेक्ट बनेबे स्टूडेंट s2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 11 देन ए जो पैरामीटर वेरिएबल ट्रिपल टू आर्यन एठी स्टोर हला आईडी रे एठी नेम रे आर्यन स्टोर हला ए वैल्यू गुडा का आसे पुनी मेंबर वेरिएबल स्टोर हला जेता मन लिखिबे s2 डॉट डिस्प्ले ताले एठी आईडी और नेम ए दिटा को इंफॉर्मेशन शो कला बुझियला दिटा का डिफरेंस किसी डाउट अछि साहिल सुदीप्ता शिव अमित स्नेहा शुभश्री so now you can write one note about this keyword. Write that this keyword is used heading you can pass uses of this keyword. So this keyword is used, first option, this keyword is used to resolve the ambiguity between parameter variable and member variable. When the parameter variable and member variable name is same. When the parameter variable and member variable name is same. Okay. So now another example I will show you. This keyword for calling one method to another method. If you want to call a method, if you want to call a constructor into another constructor, then this method is used. Okay, so this method, it is a this keyword, another we're using this method. So this method is used to calling one class constructor to another constructor. Okay, so जदि गोटे क्लास रे मु दुईटा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूची गोटे कंस्ट्रक्टर टा को आ गोटे कंस्ट्रक्टर भितर कॉल करिया को हेले हमें यूज करिवा दिस मेथड. So this method is used to call one constructor into another constructor. गोटे कंस्ट्रक्टर टा को हमें आ गोटे कंस्ट्रक्टर भितर हमें कॉल करि परिबा. तो ए एग्जांपल ले हमें सेरा देखि परिबा. मार्क करो गोटे क्लास मु डिफाइन कली स्टूडेंट 13 एठी दीटा मेंबर वेरिएबल रहिला गोटे आईएनटी आईडी रहिला आ गोटे स्ट्रिंग नेम रहिला एठी हमें डिफाइन कले स्टूडेंट 13 गोटे डिफाइन कले तापर हमें एठी डिफाइन कले स्टूडेंट 13 आईएनटी आईडी एंड स्ट्रिंग नेम एठी पैरामीटर रहिला एठी पैरामीटर नहीं एठी पैरामीटर रहिला किंतु एठी मार्क करो मु गोटे यूज कली दिस मेथड गोटे यूज कली ए दिस मेथड थ्रू रे कोन हबो ना ए जो क्लास रो कंस्ट्रक्टर बा ए जो कंस्ट्रक्टर अछि एठी कॉल हे जिवो माने मते ए कंस्ट्रक्टर टा को एटा होचे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एटा होचे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करे हेले मते ए लाइन रे कोन करिया पड़ी थांदा एठी देखो ए जो मेन मेथड रे मु क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाई थांदी एठी कोनोसी पैरामीटर मु पास करि न थांदी एठी कोनोसी पैरामीटर पास करि न थांदी एठी आ गोटे ऑब्जेक्ट सपोज ई बनाई थांदी तो ई ऑब्जेक्ट रे कंस्ट्रक्टर टा कॉल हे थांदा किंतु मु कोन कली ना ए गोटे एक्स्ट्रा जते थरा हमें ऑब्जेक्ट बनेबा हमें सेते थरा मेमोरी क्रिएट करिवा तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए मोर देन वन ऑब्जेक्ट देन मोर देन वन मेमोरी इट इज क्रिएटेड तो मु एटा को रिजॉल्व कर देले मु ना मु एते ऑब्जेक्ट तो एते मेमोरी क्रिएट करबिनी मु गोटे ऑब्जेक्ट बनेबी ए ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु समस्त को कॉल करिवि माने स्टूडेंट 13 आदर रहला आईएनटी आईडी रहला गोटा करे रहला स्ट्रिंग नेम तापर एठी रहला स्टूडेंट 13 रहला ए 13 रे हमर कोन होबो ना देखो एठी मोर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टा एठी कॉल हे जिवो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एटा कॉल होबो एटा होचे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एटा ला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जोटे पैरामीटर अछि एटा तो एठी मु कोन कली ना गोटे यूज कली दिस मेथड यूज कली ए मेथड रो वर्क कोन ये कोन करिवो ए जो कंस्ट्रक्टर टा को कॉल कर दबो ऑटोमेटिकली
तापर देख मु मेन मेथड को जाउची कारण हमर जेतला प्रोग्राम टा एग्जीक्यूट करबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल से मेन मेथड को ही जीवो तो मेन मेथड रे कोन हला ना मु कोन कली स्टूडेंट 13 क्लास रो गोटे ऑब्जेक्ट बनेली स्टूडेंट 13 e1 is equals to new student 13 तो गोटे क्लास रो एठी मु ऑब्जेक्ट बनेली स्टूडेंट 13 e1 is equals to new student 13 111 करण तापर ए जो e1 ऑब्जेक्ट रे मु कोन कली डिस्प्ले फंक्शन टा को कॉल करली जेतले मु डिस्प्ले फंक्शन जेतले प्रथम तो ऑब्जेक्ट बनौची कोन होची देखो जेतले मु ए ऑब्जेक्ट टा बनेबी तो ऑटोमेटिक से कोठे की जीवो ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जीवो ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कोन हबो ना दिस मेथड लिखाई जी तो दिस मेथड कोन करिवो ना कंस्ट्रक्टर को कॉल करिवो से देखियो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तापर ए जो वैल्यू अछि 111 करण 111 देन करण एटा एठी 111 टा आईडी रे स्टोर हैला नेम रे करण स्टोर हैला से आसे कोडी स्टोर हैला आईडी और नेम रे स्टोर हैला तार जेतरा मो फंक्शन टा को कॉल करिवे 111 देखेबो एठी करण देखेबो पुनी आउ थरे जेतबेले ऑब्जेक्ट बनाउची पुनी एठी पैरामीटर दउची ताले पुनी कोन होबो ना एई कंस्ट्रक्टर टा कॉल होबो ए कंस्ट्रक्टर कॉल होबनी ये अगेन कोन करिवो ना अगेन दिस मेथड टा को कॉल करिवो तो मन रख जेतबेले प्रोग्राम टा रन हुए प्रथम से कोन करे ना ऑब्जेक्ट टा को क्रिएट करे सो प्रथम तो से कोन करिवो दीटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करिवो जेतबेले से दीटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूची ऑटोमेटिकली दिस मेथड टा दिथर कॉल हेजो माने प्रथम जेतबेले तुमको आउटपुट देखेइबो से कोन देखेइबो एटा एग्जाम आसे एबा तुमको जेतबेले इंटरव्यू दबो एटा पचारिबो आमे जदि सीरियली जीवा जदि नॉर्मली प्रोग्राम वाइज देबा तो प्रथम आमे कोन कले ना स्टूडेंट 13 11 रो ऑब्जेक्ट बनैले ताले कोन हबो ना ए जो 111 और करण एटी स्टोर हला ये आसे के मेंबर वेरिएबल ले स्टोर हला तापर मु कोन कली ना डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कली डिस्प्ले फंक्शन से मते देखाइ दबा 111 करण तापर मु ऑब्जेक्ट बनौची e2 तापर कोन हबो ना जेतला ऑब्जेक्ट बनौची एटा कॉल हबो एटा कॉल हले पुनी दिस मेथड कॉल हबो माने मते प्रथम कोन देखाय कथा प्रथम ए लाइन देखेबो तापर देखेबो 111 करण तापर मते कोन देखेबो पुनी देखेबो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किंतु या देखै नथाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एट ए टाइम दिथर देखेबो कारण जेते बेले हमें प्रोग्राम टा को रन करिवा से फास्ट जेतेरा क्लास हेतिबो तारा ऑब्जेक्ट टा को क्रिएट कर दबो जेते बेले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूची बाय डिफॉल्ट से कोन करिवो कंस्ट्रक्टर टा को कॉल करिवो तो जेते से कंस्ट्रक्टर को कॉल करूची तो हम फर्स्ट लाइन में लिखिचे दिस मेथड तो ए दिथर जाक से कोन करिवो ना आको कॉल करिवो गोटे मिनिट कॉल आस सॉरी तो एठी हमें जेतेबेले मु एटा जोर कहउतली हमें जेते थरा ऑब्जेक्ट बनेबा सेते थरा हमर ए जो कंस्ट्रक्टर टा कॉल हे जीवो तो हमर आउटपुट टा कोन आसीबो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनवॉक दिथर देखेबो तापर देखेबो 111 करण एंड 222 आर्यन देखो मु जोरा कहउची से ठीक अछि कि हमें देखिबा प्रोग्राम टा को एग्जीक्यूट करिके रे इंटरव्यू रे भी तोनो क्वेश्चन आसी जीवो ए टाइप रो तुम देतेबा आउटपुट बाहर करिया पय प्रथम मन रखियो जेते बेले हमें प्रोग्राम रन करिवा क्लास रो ऑब्जेक्ट बनौचे फास्ट प्रोग्राम मेन मेथड कोन करिवो क्लास रो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करिवो क्लास रो ऑब्जेक्ट क्रिएट होची माने फास्ट से कंस्ट्रक्टर टा को कॉल करिवो तापर जा नेक्स्ट ऑपरेशन अछि से करिवो
देखो मुझे सीक्वेंस ये कर देछि u1 डॉट डिस्प्ले एबे देखो मु कोन करूछि मु एटा काटी दोछि मु एबे एटा को एटी रखिउछि एबे देखो कोन आस एबे दी थर ऑब्जेक्ट बनाला एबे आउटपुट ए आउटपुट देखो कोन आसीला एमदी आसीला एबे देखो कोन आसीबो एबे जब मु दी थर ऑब्जेक्ट बनौछि से फास्ट दी थर कंस्ट्रक्टर को कॉल करिवो आउटपुट केन डिफर होछि केवल सीक्वेंस चेंज कर देले आउटपुट टाइम हमर डिफर आसीबो default constructor is invoked and default constructor is invoked okay बुझेला किसी डाउट अछि पचारि पार जरा डाउट अछि हैंड रेज करि परिबो न क्वेश्चन पचारि पार किछ असुविधा नै नले मु नेक्स्ट को मूव करिबी ओके मु नेक्स्ट आ गोटे पार्ट को कवर करूची ये जो दिस मेथड रा आ गोटे वर्क कोन रहइबो नेक्स्ट वर्क इज व्हाट ये तीनटा एग्जांपल मु पठे देबी स्लो होची हमें दिस कीवर्ड थ्रू रे गोटे क्लास रो फंक्शन को गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भीतर कॉल करि परिबा तो देखिबा एबे केमती गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भीतर कॉल करिबा तो हमें जानि छे जे फंक्शन टा कॉल हुए मु जो काली जो पढेतिली हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा से ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें फंक्शन को कॉल करिबा किंतु एठी कोन हुए गोटे फंक्शन भीतर आ गोटे फंक्शन को कॉल करिबा माने ब्लूटूथ भीतर हमें जेमती हमें गोटे छोटो एग्जांपल नै परिबा ब्लूटूथ भीतर हमें वाईफाई टा को एनेबल करिबा माने एटा गोटे जस्ट एग्जांपल मोड देले माने गोटे फंक्शन भीतर हमें धर ब्लूटूथ ऑप्शन टा को ऑन करछे त माने हमर वाईफाई टा ऑन होबा जोठी जहार जोठी डाउट होबो पचारिबो असुविधा नै मु बार बार बुझेबी वीडियो छी तो डाउट रखियो highly conceptual thing and which is helping you in all interview एटी देखो एटी गोटे क्लास हमें डिफाइन कले क्लास एस void m फंक्शन सिंपल सिंपल ना देछि m फंक्शन m पर गोटे n फंक्शन देछि n पर गोटे p फंक्शन देछि ओके हमें तीनटा फंक्शन डिफाइन कले गोटे क्लास भीतर गोटे m n p मेन मेथड को आसा हमें फंक्शन कोडी कॉल करबा ना क्लास रो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेबा क्लास रो ना होची s ऑब्जेक्ट ना होची s1 हमें जे कोनसी ना दे परिबा इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू गिव
any I and B, so you can give any name. तो आज मैं एस देसी गोटे S1 गोटे ऑब्जेक्ट डिफाइन कली गोटे इनविटेशन कार्ड बनैली ए इनविटेशन कार्ड थ्रू मु कहा को इनवाइट कली ना कॉल कली कहा को इनवाइट कली पी को कॉल कली जेतरे मु पी को कॉल करछि से ऑटोमेटिक कोन करिवो ना एन को कॉल करिवो एन टा को एन कहा को कॉल करिवो एन टा एम को कॉल करिवो माने मु जण को कॉल कली से ताको डेकला जेतले देखो एठी मु पी को जेतले कॉल करछि एन पाखरे दिस कीवर्ड नै देखो एठी एम फंक्शन मु डिफाइन करछि एम फंक्शन टा एन फंक्शन भीतर कॉल करा जायछि एम फंक्शन टा को जेतले मु एन फंक्शन भीतर कॉल करिवि मु एठी दिस कीवर्ड यूज करी दिस डॉट एन आ जेतले मु एन को पी भीतर कॉल कली आ दिस कीवर्ड यूज करा जिवो नै आ अर्थ होउछि जेतेबेले हमें दिस कीवर्ड यूज करके गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भीतर कॉल करछे आ अगेन सेही फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भीतर कॉल करछे एठी आ हमको दिस कीवर्ड लिखिबा दरकार पड़िबो नै एठी कंपाइलर तम पई दिस कीवर्ड टा ऑटोमेटिकली ऐड कर दबो थरे जदी तमे दिस कीवर्ड यूज करके फंक्शन को कॉल करूचो द्वितीय थर तुमको आ कॉल करबा को पड़िबो नै एटा ऑटोमेटिक तम पई माने कॉल हे जिवो सो क्लास एस void m function n भीतर में यूज करिवा this dot m then void p भीतर में n कॉल करले तो जला में s1 is equal to new s1 dot p को जतरा मु कॉल करिवि ऑटोमेटिक p कोन करिवो n को कॉल करिवो n कोन करिवो m को कॉल करिवो बुझियला एबे यार आउटपुट टा में देखिबा केमति आछी जहार जो डाउट रहिबो मते स्टॉप करिवो से जगह रे बुझेबी see there first when I call s1.p p function को जेतबे कॉल कोची से कोन कला n को कॉल कला n टा कोन कला m को कॉल कला जेतला m को कॉल करचे फास्ट देखला मेथड इज इन्वोक्ड फास्ट एटा कॉल हला एटा शो करा तापर कोडा शो करिवो n शो करिवो तापर कोडा शो करिवो p शो करिवो किंतु कोडा देखियार देला मो p को कॉल करचे माने फर्स्ट p लिखेबा कथा किंतु p कोन कला फर्स्ट लाइन रे ही से कॉल कर देला n को जेतले से n को कॉल करचे n कोन कला तार फर्स्ट लाइन ही से लिखि देला नै मो m को कॉल करिवो तो m कॉल हे गला m रो काम सरी गला m रो काम सरला पर n कोन कला तार जो फंक्शनलिटी अछि सेरा शो कला तो तार फंक्शनलिटी सरी गला तो p ऑलरेडी कॉल कर देछि n को तो ऑटोमेटिक जो p रे जा फंक्शनलिटी अछि एडी शो कला बुझी परलो किछि डाउट अछि प्रोग्राम रे doubt in this program सर आउटपुट टा टिके देखानी एटा आउटपुट मेथड इज इन्वोक्ड तापर मेथड n मेथड p ओके गोटे डाउट पचातलो कि कोन होइतला को so now I move to another concept so this keyword रा में तीनटा जिंस पढले गोटे होची आउरे सेकंड पॉइंट लिखो by using this method माने parenthesis दो by using this method we call one constructor into another
next लिखो, this keyword is used to call one function into another function. So next I go for the operators. So operator basically it is used to do some kind of operation, and when you are using operator, this operator is working with the operand. Hello. Hello. There are different type of operator we're using. One is arithmetical operator, logical operator, then relational operator, unary operator. So these are the operators we're using in Java. First of all, in the arithmetical operator, we're using plus, minus, then division. Okay, so these are the operators we are using: plus, minus, division, then modulo. Okay, so plus means for adding a number, minus means subtract the number, then division the number, then modulo is used to showing the remainder part. Plus for adding a number, minus for subtract the number, then division, modulo is used for showing the remainder part. So modulo is used to showing the remainder part. So these are the arithmetic operator we are using. Then Hello. modulo is what? I mean the approach modulo. Modular work hochi, it is used so remainder part.
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍बर को डिवाइड करिवा डिवाइड कला परे धर 10 डिविजिबल बाय 3 ओके तार रिमाइंडर आसीबो 1 okay so modulo is showing the remainder part plus minus multiplication is all the same okay so in tomorrow I will again explain all these operator okay so tomorrow I will show you the operators what are the operator you are using logical operator arithmetic unary operator okay so tomorrow I will take so if you any doubt you can message me so or you can ask me in tomorrow classes also okay so tomorrow same time we will meet